Yes, good morning students. So now we will start with chapter number 5. Okay. Chapter number 5 is gratitude. Now what is gratitude? Gratitude means किसी के हम thankful. किसी ने हमारी help की तो हमें बहुत thankfulness feel होता है. That is gratitude. Now we will see in this chapter what is there. Once a 10-year boy entered a hotel and sat at a table. A waitress put a glass of water in front of him. How much is an ice cream sundae? He asked. 30 rupees, replied the waitress. The little boy pulled his hands out of his pocket and studied the coins in it. Well, how much is a plain dish of ice cream? He inquired. By now, more people were waiting for a table and waitress was going impatient. 25 rupees. She replied with the visible sign of irritation. The little boy again counted his coin. I will have plain ice cream, he said. Now see, a small boy has went to a hotel. वो होटल गया है. उसने पहले वेट्रेस से आइसक्रीम का प्राइस पूछा तो she told 30. Then again he asked, तो वेट्रेस बहुत इरिटेट हो रहे थे. Then he asked regarding plain ice cream as he had very less money. उस लड़के के पास कम पैसे थे. जितने पैसे थे उसको उतनी ही आइसक्रीम खानी थी. So then 25 rupees was plain ice cream, so he told that he will go with the plain ice cream. The waitress bought the ice cream, put the bill on table and walked away. The boy finished the ice cream, paid the cashier and left. When the waitress came back, she began to cry as she wiped down the table. There, placed neatly beside the empty dish, were 5 rupees. The boy did not have his favorite ice cream because he wanted to give the waitress 5 rupees as tip for her service. अब पहले बॉय ने पूछा कि आइसक्रीम कितने की है तो 30 वाली उसकी फेवरेट आइसक्रीम थी. बट ही हैड ओनली 30 रुपीज़. उसके पास 30 थे पर उसको 5 रुपीज़ वेट्रेस को टिप देने थे. इसलिए उसने अपनी 30 रुपीज़ की आइसक्रीम नहीं खा के प्लेन आइसक्रीम खाई 25 रुपीज़ वाली और 5 रुपीज़ वो टेबल पे वेट्रेस के लिए टिप रख के गया. ये देख के वो वेट्रेस बहुत ही रोने लगी कि इतना ऐसे अच्छा लड़का. नाउ व्हाट ए गुड एग्जाम्पल. We will argue that boy was grateful to the servant as gratitude is one of the best quality a human person should have. ये gratitude था. वेटर वेट्रेस हमको सर्विस दे रहे हैं, हमको सब टेबल पे हमको हाथ में खाना दे के जा रहे हैं. So it is our duty कि हमें उनको टिप या कुछ भी देना चाहिए. ठीक है. Now ये हमारी थैंकफुलनेस है. ठीक है. ये बेस्ट क्वालिटी होती है एक पर्सन में. Gratitude means thankfulness. It is a noble feeling from the heart towards who help us. जो हमारी मदद करता है हम किसी न किसी रूप से हम भी उनको थैंकफुलनेस दिखा देते हैं. Gratitude can be expressed through words or deeds. वर्ड से भी अपन उसको दिखा सकते हैं या कुछ करके भी दिखा सकते हैं. जैसे उस लड़के ने टिप रख दी. It is a kind of appreciation for the people who do good to us. एक टाइप ऑफ एप्रिसिएशन है. अगर आप कुछ अच्छे मार्क्स लाते हो, कुछ अच्छा लिखते हो तो मैम आपको क्या बोलती है? वेरी गुड, एक्सीलेंट. कभी बोल के करती है तो कभी क्या करती है मैम? कुछ स्टार वगैरह बना देती है. सो दीज आर व्हाट द साइन ऑफ थैंकफुलनेस. ये एक ग्रैटिट्यूड है. ठीक है. एज चिल्ड्रन वी हैव टू थैंक टू मैनी. हु आर दे? हमें किस किस को थैंक करना चाहिए? God, our parents, teachers, friends, and so on. We should be thankful to God, the world in which we live, the nature we enjoy, our parents, and our existence itself. Everything is created by God. God को सबसे पहले हमें thankful होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है. Our parents और हमें भी उन्होंने ही बनाया है. His kindness is immeasurable and His love is boundless. So it is our prime duty to thank Him. हमारी सबसे पहली ड्यूटी है उनको थैंक करना. ठीक है. नेक्स्ट पेज. हाउ कैन वी शो अवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड. गॉड को कैसे अपन ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं? बाय प्रेइंग एवरी डे. ठीक है. एंड बाय प्रेइंग ऑल्सो. एंड द गॉड हैज गिवन अस वेरियस टैलेंट्स. हमें हमारा टैलेंट या कुछ भी अच्छी चीज़ दी है तो हमें वो यूज़ करके और अच्छा बनना चाहिए. ठीक है. एंड बाय लविंग ऑल एंड स्पेशली द पुअर पीपल को लव करना, किसी की मदद करना, कोई दुखी हो तो. नाउ दीज आर द वेज इन विच वी कैन हेल्प, वी कैन थैंक अवर गॉड.
ठीक है। फिर दूसरा, पेरेंट्स आर अवर विजिबल गॉड। पेरेंट्स भी हमारे गॉड की तरह ही हैं, जिन्होंने हमें बर्थ दिया, हमें बड़ा किया। दे आर मेकिंग अस लर्निंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर स्कूल एंड एडमिशन, सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस अ लॉट। ओके, बहुत सारी डिफिकल्टीज पेरेंट्स को करनी पड़ती है, बट विदाउट एनी कंप्लेंट दे सेक्रीफाइस देयर हैप्पीनेस फॉर अस। अपनी पूरी खुशी वो लोग छोड़ के और अपनी खुशी के पीछे वो लोग सब करते हैं। कौन? पेरेंट्स। दे टेक केयर ऑफ अस ऑलवेज, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हम थोड़े भी बीमार होते हैं तो दे टेक केयर ऑफ अस, सो वाई शुड नॉट बी थैंकफुल टू देम। हमें पेरेंट्स को भी थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड शो अवर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड अवर पेरेंट्स ऑल्सो। हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग देम इन देयर वर्क, बाय डूइंग द थिंग्स प्रॉपरली, कीपिंग योर बैग, यूनिफॉर्म, वाटर बॉटल, शूज एट द प्रॉपर प्लेस। Nowadays lockdown is there, so you can help your mother in some kitchen. You can eat your lunch and keep your plate at the proper place, keep the glasses at proper place, ठीक है। And we can also do our duties properly. We can also pray to God for their good health of our parents, ठीक है। फिर हमें किसे थैंकफुल होना चाहिए? टीचर्स। पहले गॉड, फिर पेरेंट्स, फिर टीचर्स। नाउ टीचर्स हमारे सेकंड पेरेंट्स हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे एनलाइटन अस विद सो मच नॉलेज एंड विजडम। और हमें एक अच्छा वर्दी सिटीजन, यानी कि एक अच्छा इंसान यहाँ पे रहने के लिए एक टीचर ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और हमें इतना सारा नॉलेज भी देती है। एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन फ्रेमिंग आवर फ्यूचर। हमारा फ्यूचर बनाने के लिए भी वो एक बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। तो हमें पेरेंट्स और हम टीचर्स को कैसे थैंकफुल कर सकते हैं? हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम ओबे करें, हम अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे तो हमारे लिए वो, उनके लिए वो बहुत अच्छे। हम नाउ सी वी टीचर्स गेट वेरी हैप्पी व्हेन यू गेट गुड मार्क्स। वाह, उसने खुद अच्छे से किया है तो वो बहुत टीचर को अच्छा लगता है। यूनिट टेस्ट में मैम को पता पड़ जाता है किसने देख के किया है, किसने नहीं किया है। जब मैम को पता पड़ता है कि उसने देख के किया है तो बहुत दुख होता है, पर जब राइटिंग से ही पता पड़ जाता है कि खुद किया है और अच्छे से वर्किंग वगैरह सब दिखाई है, सॉल्व किया है, तो मैम को बहुत अच्छा लगता है। सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन शो योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर टीचर्स, ठीक है। लास्ट पेज, फ्रेंड्स मेक अवर लाइफ हैप्पी, कलरफुल एंड मीनिंगफुल। लास्ट में आते हैं हमारे फ्रेंड्स। हमें हमेशा हमारे फ्रेंड्स में ऑनेस्ट रहना चाहिए और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। वन वे और द अनदर हमारे लाइफ में कोई ना कोई आता है, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि मिल्कमैन, रिक्शा ड्राइवर, शॉपकीपर, बार्बर, सबको एटलीस्ट हमें थैंक यू तो बोलना चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं तो यूज द वर्ड थैंक यू, ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा। सो ग्रैटिट्यूड कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स थैंक यू, ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई विल नेवर फॉरगेट दिस, योर हेल्प, एनीथिंग। एटलीस्ट वी कैन स्माइल। चढ़ा हुआ गुस्से वाला मुंह बना के दुकान गए, चीज लेके आ गए, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा शॉपकीपर को। सो वी शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग एंड वी शुड यूज द वर्ड्स थैंक यू। कुछ छोटे छोटे ओकेशंस पे अपन गिफ्ट भी दे सकते हैं कि किसी ने नया घर लिया है या किसी के कुछ घर पे फंक्शन, शादी है, सो वी ऑफर सम गिफ्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज द वे टू ऑफर ग्रैटिट्यूड। और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट वी कैन प्रे फॉर आवर फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग gratitude. Offering prayer is also important. Now whatever be the way, the feeling of gratitude should be expressed. It is said that the fruits the tree bears are the expression of the gratitude towards the गार्डनर. जब ट्रीज में कुछ फ्रूट उगता है या फूल उगता है तो गार्डनर बहुत खुश होता है, तो ट्रीज भी अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं. इन द सेम वे लेट अवर लाइफ बी एक्सप्रेशन ऑफ अवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दोज हु हेल्प अस. जो भी हमारे घर हमारे मेड्स आते हैं, हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए. ठीक है, लास्ट में देखो दिया हुआ है लिटिल एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. कैसे हम थैंक यू बोल सकते हैं? से थैंक यू व्हेन एवर यू रिसीव हेल्प. हमें थैंक यू बोलना चाहिए. हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड ओबे देम, मेक योर फ्रेंड्स हैप्पी एंड लव ऑल एंड प्रेज गॉड.
ये 5 चीज़ें जिससे अपन हमारा ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस हम किसी को शो कर सकते हैं, ये 5 चीज़ों से। आया चैप्टर समझ में? सो दिस चैप्टर इज ओवर। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स, ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स विद द PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज कंप्लीट इट, डोंट डिले योर वर्क। ओके, bye bye, thank you. In the next chapter video we will start chapter number 6.